the nonsense that goes around in the name of religion. And this, the infidel, the core idea was very powerful, and that's why we decided to remake the film. We went to Mr. Kundan Shah, and Kundan sir helped us a lot. He's the creative consultant on the film, so he helped us develop the script along with his team of writers. And it took us about 2.5 years to develop the film, and then we were very lucky to have those 3 stalwarts who were sitting here, who agreed to be part of the film. So that's how the film happened. शारिक, मुझे ये लगता है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, शायद ज़्यादा ही कुछ ड्रामेटिक आइडिया ना हो, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस के अंदर ये होना चाहिए कि भैया कुरान के बारे में भी समझाया जाए, गीता के बारे में भी समझाया जाए, बाइबल के बारे में भी समझाया जाए। ये सिलेबस के अंदर होना चाहिए। कम से कम लोगों की गलतफहमी इस लेवल पे, जिस उम्र में गलतफहमी को आप ज्यादा पाल लेते हैं, उस उम्र के अंदर कुछ क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल, कम से कम सारांश में तो बताया जा सकता है, बहुत जरूरी है। एक सवाल अजीत जी को, सर इधर राइट में आपके। सर, हमारी फिल्मों की जैसे जैसे तादाद बढ़ी है, तो एक ग्रुप भी हिंदुस्तान में एक पैदा हुआ है जो फिल्म के 2 या 3 दिन पहले कहीं किसी भी कोने में याचिका दर्ज करवा देता है। तो लगता है आपको आपकी फिल्म के खिलाफ भी कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो पहले से सावधान रहें? देखिए, एज ए स्टूडियो हम इस राह पे कई बार चल चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि वो ओ माय गॉड भी हम लोगों ने की थी, तो हम उस तरह से हर तरीके से तैयार रहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने आए तो हम उससे उस तरह से डील करें। पर जैसे इन्होंने कहा, मेरे ख्याल से इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को इवन याचिका दायर करने की जद्दोजहद करनी पड़े। बहुत ही एक स्वीट मैसेज वाली फिल्म है, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप इसकी कॉमेडी एंजॉय करेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग बिल्कुल जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलते हैं। जो सेंसर है, सेंसर अगर फिल्म क्लियरली अप्रूव करता है तो ही फिल्म दिखाई जाती है। तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक सीधी सी चीज है। बाकी याचिका अगर आपको दायर करने का मन है, कुछ कुलबुलाहट है, तो इस देश में मुद्दे तो कम है नहीं। हमारी फिल्म तो फिर छोटी सी फिल्म है। I would like to elaborate on this. The Honorable Supreme Court has passed a judgment of comprising 3 benches that any insignificant petition filed by someone in Jamshedpur or Aligarh will be thrown in the dustbin. This is the latest ruling by the Honorable Supreme Court. कि आप किसी को परेशान करने के लिए, just to take some kind of revenge, just to get some kind of arm twisting or some kind, to get some kind of publicity, they will not. The Honorable Court will not, from the SDM Session Court up to the Supreme Court, they will not enter these kind of PILs or public litigation case. Sharik. Well, my question is for the 3 actors on stage, Paresh sir, Nasir sir and Anu sir. Sir, tomorrow is Women's Day, but here in India, we all know about the documentary India's Daughter being banned. What are your takes on it? I just want to know what are your views, because do you think it should be like available for the people to watch it, because it's been banned on YouTube also, and like BBC has been I find it impossible to understand why it has been banned. I have not seen the film, but I happen to be aware of its contents. I heard the interview with the lady who made the film, who herself is a rape victim and has made this film. I dare say she understands the pain of a rape victim. And I think this movie should be seen. It is completely beyond comprehension why it has been banned, because it shows up the mindset of a person like this, and it's very important that we understand it. Because a lot of us suffer from the same malady. A lot of old uncles and old people make these kind of remarks without being contradicted or without being castigated. The kind of remarks that this person has made, the person who's the convicted rapist. He's a person who has nothing to lose, so he feels he can have his say. And what he has said is really, really revealing about a majority of the male mindset in our country. I think this ban should be revoked, and I think this film should be seen in India. नहीं, नसीर भाई, मेरा एक बहुत बेसिक कहना है, मैंने भी शेयर किया ये बात। I've seen the film, and it's an eye opener. मैं मेरे भाई साहब जो हैं उनसे उस चीज को एंडोर्स करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, हिंदुस्तान की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बातें पेपर के ऊपर हैं। जब तक हमारा प्रजातंत्र अपने इंप्लीमेंट करना नहीं सीखेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को ये फिल्म
हमारे बच्चों को स्कूल में दिखाई जानी चाहिए। जे एक पुरुष चित्त ने जिस तरह से उस बच्ची को डिस्क्राइब किया है, बाय द वे मैं 2013 में मुझे तो कभी पुरस्कार ऐसे मिले नहीं है ऐसा कोई, लेकिन एक मौका ऐसा आ गया था कि मुझे अवार्ड मिला था, तो मैंने उसी बच्ची को समर्पित कर दिया था और मैंने कहा था कि ये स्पीच तुम मेरी काट लोगे। मैंने निर्भया को समर्पित किया था, मेरा बेस्ट एक्टर जो भी अवार्ड मिला था मुझे। तो ये पुरुष चित्र जो है, भारतीय पुरुष चित्र जो है, वो भारतीय जो समाज है जहां हमारी बच्चियों को यह सिखाया जा रहा है कि डोंट गेट रेप्ड, लेकिन हम हमारे पुरुष बच्चों को नहीं सिखाते कि डोंट रेप। ये जो मेंटालिटी है, और ये सिर्फ भारत समाज में, भारत 16 देवियों के रूप में हवन करते हुए देवियों का पूजा करता है। आपने देखा होगा, अगर आप लोग हिंदू हो तो बेटा 16 देवियां और नवग्रह रखे जाते हैं, 16 देवियों की पूजा करता है, लेकिन अपने इमेजिनेशन में, अपनी माइथोलॉजी में। लेकिन जब यथार्थ आता है तो हमारे यहां हर बच्ची, हर बहू, हर बेटी, हर बहन प्रताड़ित की जाती है, दूषित की जाती है और अपमानित की जाती है समाज के अंदर, जो अपने आप को कहता है कि हम 4000 साल पुराना समाज है, हमारी संस्कृति बड़ी महान है। ऐसी संस्कृति को चूल्हे में डाल देना चाहिए जो स्त्री को ऐसा निरादर करने के लिए तैयार हो। ये स्कूल, कॉलेज, हर जगह ये पिक्चर दिखाई जानी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए कि वो क्या मुकेश सिंह नाम है, कैसे पास कर रहा है। मैं सिर्फ उससे इतना पूछना चाहता हूं, उसने कहा बच्ची जो शाम को जा रही है उसके साथ वो क्या उम्मीद करती है, तो मैंने कहा कि तूने जो कहा है तो क्या तुझे कैस्ट्रेट कर दें? काश ये सऊदी अरेबिया होता तो ऐसे बयान भी नहीं आ पाते कभी। हर एक को देखनी चाहिए ये, मैं तो अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूं ये, ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है समझे कि अब जमाना बदल गया है, और ये भी उनको समझाए कि स्त्री का अपमान अभी नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 4000 साल से स्त्री इसी तरह प्रताड़ित और दूषित और अपमानित की जाती है। शारिक, Paresh, एक लास्ट your क्वेश्चन, comment. शारिक के लिए एक लास्ट क्वेश्चन। Paresh sir, your comments. एक last question, What are your Shah. views on this? On On the documentary being banned? my in India? reaction, Yes, sir. मैं तो मानता हूं कि दिखानी चाहिए, क्योंकि हम कम से कम विचारधारा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस किस्म के जो बंदे होते हैं उसका माइंडसेट तो हम समझे। अगर नथुराम गोडसे को आप अदालत में खड़ा करके उनका बयान सुन सकते, उनका बयान ले सकते, उनका बयान आप ये भी कैसे प्रकाशित कर सकते, तो ऐसे लोगों का भी बयान आना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है इसके अंदर। और शारिक लास्ट क्वेश्चन Yeah, it's assuming that everybody in this country is a moron who's going to be affected deeply by what they see. Let the people see what they want to see and make up their own minds. शारिक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं कुछ समय के पहले जब शो शुरू हुआ उसके पहले मैं बात कर रहा था डायरेक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि 2 सीन ऐसे बताइए जो इस फिल्म में वाकई हमारे जहन में रह जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे तो याद रहेंगे और अपने पड़ोसी को बताएंगे। आई थिंक क्लाइमैक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो बात हम लोग कह रही है, जो पूरा जो संक्षेप है पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स में आता है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट परेश जी's कैरेक्टर कम्स आउट एंड सेज, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और एक सीन नहीं है, बट देयर इज अ होल मोन्टाज सीक्वेंस जहां पर परेश जी के कैरेक्टर हिंदुइज्म के बारे में और इस्लाम के बारे में सीख रहे हैं, एंड दैट वी केप्ट इट इन अ वेरी कल्चरल स्पेस, एंड पार्ट ऑफ दैट यू सॉ इन द प्रोमो आल्सो। आई थिंक दैट इज समथिंग that everyone will really enjoy. That basically is the same thing, just with different prisms that we look at religion. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई, Thank you, thank you सुरेश very भाई, much. अनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।
Darling,